students, in previous class you have studied about bonds and types of bonds, ionic bonds and covalent bonds. Now today I teach you compounds, ionic compounds and covalent compounds. Ionic compounds, covalent compounds. Ionic compounds, these are the compounds which are formed due to transfer of electrons, and covalent compounds are the compounds that are formed due to sharing of electrons. आयनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है. कोवेलेंट कंपाउंड्स में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है. आयनिक कंपाउंड्स मेटल और नॉन मेटल के बीच में फॉर्म होते हैं. दीज आर फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स ऑफ सेम नॉन मेटल और बिटवीन द एटम्स ऑफ, these are formed between the atoms of non-metals. Now there is strong force of attraction between ions and there is weak force of attraction in covalent compounds. In ionic compounds there is strong force of attraction. In covalent compounds there is weak force of attraction. Examples of ionic compounds like sodium chloride, magnesium chloride, sodium oxide, magnesium oxide. Now examples of covalent compounds are water, H2S, ammonia, methane, ethene, ethyne. All of these are covalent compounds. Ionic compounds are crystalline solid. Ionic compounds are crystalline solid. Means crystal जैसा स्ट्रक्चर होता है इनका, क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर. सॉल्ट क्रिस्टलाइन होते हैं ना, सॉलिड होते हैं, शाइनी होते हैं. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ आयंस. आयनिक कंपाउंड किससे बने, आयन से. मेटल, नॉन मेटल, ये आयन जो फॉर्म करेंगे, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन. So ions or ions have strong force of attraction in them. Ions have strong force of attraction in between them. They are held together with strong ionic bond. उनमें strong bond होता है ions में, tightly held होते हैं, तो वो जो है easily break नहीं किए जा सकते. So ionic compounds are crystalline solid. And in covalent compounds there is weak attraction. We can break easily covalent compounds, and these are mainly liquids or gases. Covalent compounds may be in form of liquids, gases, generally liquids or gases, and some of covalent compounds are solids. Some of ionic compounds are solid in nature. Okay. Now students, ionic compounds are good conductor of heat and electricity. ये क्या है, गुड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के. इन aqueous solution or in molten state.
ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं अपने में से, हीट पास करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट मींस जब किसी सॉल्ट में, किसी आयनिक कंपाउंड में हम करंट पास करेंगे तो वो डिकम्पोज नहीं होगा, वो आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा, उसमें से करंट पास नहीं होगा। लेकिन जब उस कंपाउंड को हम वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं, उसका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर कर देते हैं, या वो मोल्टन फॉर्म में मेल्टेड, मोल्टन मींस मेल्ट, पिघला हुआ है, आयनाइज हो गया है, तो क्या होगा, करंट उनमें से पास होगा। क्योंकि आयंस जो है कैरियर्स हैं, चार्ज कैरियर्स हैं, तो वो क्या करते हैं, दे अलाउ करंट टू पास थ्रू देम। On other hand, covalent compounds, they do not consist of ions. That's why they do not allow current, electricity to pass through them. They are non-conductors. They are non-conductors of heat and electricity. Ionic compounds are soluble in water. These are soluble in water because dielectric constant of water is very high. Because dielectric constant of water is very हाई। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मींस जो वाटर है ना, इसके पास बहुत ज्यादा कैपेसिटी है। ये इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक जहां करंट प्रोड्यूस होता है, जहां इलेक्ट्रिक करंट है उसके अराउंड क्या होगा, उसका इफेक्ट होगा, तो वो पूरा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो एनर्जी प्रोड्यूस करे, इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसको कौन स्टोर करता है, वाटर। तो वाटर में कैपेसिटी है, वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट जो भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उसको ये क्या करता है, स्टोर। वाटर हैज कैपेसिटी, वाटर हैज कैपेसिटीज टू absorb इलेक्ट्रिक एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक एनर्जी को absorb करने की कैपेसिटी जो वाटर की बहुत ज्यादा है। इट मीन्स इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा। डाई इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीन्स जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी वाटर की ज्यादा है। तो वाटर में क्या होगा, यानी कंपाउंड आयनाइज हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, आयंस में स्प्लिट हो जाएगा, और क्या करेगा, अपने में से हीट और करंट को पास करेगा, और वाटर के अंदर सोल्यूबल भी हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। वाटर क्या करता है, आयंस को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है। वाटर क्या करता है, आयंस को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, एब्सॉर्ब कर लेता है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, ज्यादा है। वेयर एज covalent compounds are insoluble in water, but sugar and glucose are soluble in water. covalent compounds जो है वाटर में soluble नहीं होते, लेकिन वाटर और ग्लूकोज आप लेते भी हो, ये वाटर में soluble है। covalent compounds are soluble in organic solvents. soluble in organic solvents, किसमें soluble है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सोल्यूबल हैं। और ये आयनिक कंपाउंड्स, दीज आर नॉट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं कौन से, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, एसीटोन, अल्कोहल एटसेट्रा। ठीक है, ये क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। एमोनिया एक्सेप्शन है, यहाँ भी एमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते, दे आर सोल्यूबल इन वाटर। अमोनिया, ग्लूकोज, शुगर, हाइड्रोजन क्लोराइड, ऑल ऑफ दीज आर सोल्यूबल इन वाटर एंड दीज आर कोवलेंट कंपाउंड्स। ये एक्सेप्शन है बेटा। आयनिक कंपाउंड्स जनरली ये तो है ही सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो सॉलिड इवेपोरेट थोड़ी होंगे, ये वॉलेटाइल नहीं है। वॉलेटाइल मीन्स इवेपोरेट, इजी टू इवेपोरेट। आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन वॉलेटाइल, आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन वॉलेटाइल मीन्स ये इवेपोरेट नहीं होंगे। एंड कोवलेंट कंपाउंड्स आर वॉलेटाइल, कोवलेंट कंपाउंड्स आर वॉलेटाइल, दे आर इजी टू इवेपोरेट because they are in form of gas or in form of liquid. I hope is it clear to you. Okay students, this is all about ionic and covalent compounds. There is strong force of attraction in ionic compounds, there is weak force of attraction in covalent compounds.
crystalline solid. Ionic compounds are crystalline solid, whereas covalent compounds are generally liquid or in gaseous form, and some of covalent compounds are in form of solids. Now students, ionic compounds are good conductor of heat and electricity because they consist of ions. Positive and negative charge ions, they flow, they allow current to pass through them. And covalent compounds, they do not consist of ions. इनमें ions ही नहीं है, so they do not allow current and heat to pass through them. Now ionic compounds soluble in water because dielectric constant of water is high. They have a strong force of attraction, but ionic compounds dissolve in water. क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीन्स जो वाटर है उसमें कैपेसिटी है आयंस को एब्जॉर्ब करने की, इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की. कोवलेंट कंपाउंड जो है सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक एसीटोन, ईथर, अल्कोहल में ही ये सोल्यूबल होते हैं, बट शुगर, ग्लूकोज, एमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड ये वाटर सोल्यूबल है और कोवलेंट कंपाउंड से इसका एक्सेप्शन है. आयनिक कंपाउंड सॉलिड है तो वो नॉन वॉलेटाइल है, इवेपोरेट नहीं होंगे, वेयरएज कोवलेंट कंपाउंड्स क्या है, volatile है because they are generally in form of liquids and gases, and liquids and gases are volatile substance, they get evaporate by absorbing heat. This is all about ionic and covalent compounds. I hope is it clear to you.